not a game, it's a rich thing. Everyone, and welcome back to Saloni's Delight. I hope you're all doing very well. Today's video is going to be a special one as we dive into the CBSE board question papers for the humanities stream, focusing on subjects such as psychology, political science, English, physical education, and Hindustani music. I've got the question papers from the year 2023 and I'm excited to share them with you. But before we get started, I want to let you know that I've received requests from both the streams, medical and non-medical. So I'm happy to let you know that I'll be working on those videos as well. And if you're interested in them, please let me know in the comment section. Now, without any further ado, let's jump into the question papers for the humanities stream of the CBSE board from 2023. Stay tuned and let's make this learning experience together. Don't forget to like, share and subscribe to Saloni's Delight for more educational content. Let's get started. Okay, so let's start with your political science का class 12th का CBSE board का question paper है and this is your set 1. Let me just set the thickness. Then we can start. Okay, so let's start. So this is your political science का question paper and maximum marks is of 80 marks as you know already know and time allowed is 3 hours. Okay, so moving on to you have to just read the note. Please check that this question paper contains 23 printed pages and you have to just read the question paper contains 30 questions and you'll be given 15 minutes time to just read your question paper and then you can start your question and then you can start your exam. Okay, now moving on to your section A. Okay, so first of all, these are some general instructions. You have to read these. The question paper contains 30 questions and as you know, all questions are compulsory. And this question paper is divided into 5 sections A, B, C, D and E. And in section A ये multiple choice होगा, section B आपका short answer type questions होंगे and section C में आपके long answer type questions होंगे and section D में आपके होंगे cartoon and map based questions, okay, and E में होंगे आपके long answer type questions होंगे, ठीक है, जो 6 marks के होंगे आपके, ठीक है, and there is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. आपके पास कोई overall choice नहीं होगी लेकिन आपकी आपके questions में जो और की option आती है वो आपको जरूर मिलेगी. Only one of the choices in such questions has to be attempted. जहाँ पे आपको और की option दी गई है वहां पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. In addition to this, separate instructions are given with each section and question wherever necessary. Okay, let's start with your section A. Okay, so these are some MCQ based questions carrying 1 mark each. Okay, so this is your first question. Mikhail Gorbachev was General Secretary of the Communist Party of USSR, the founder of the Communist Party of Russia, a leader of Western European countries, a leader against reforms in the USSR. So answer to this question, you already know. As I'm from medical background, I don't know the answers, but if you want the answers, I can provide you PDF or I can make a separate video for you guys, which is for just answers. Okay. So you have to choose the correct option to complete the sentence. Arab Spring was a political movement, cultural movement, social movement, or environmental movement. ये आपको बताना है. Which one of the following organizations works to prevent international conflicts? United Nations Human Rights Commission, United Nations Security Council, Asian Amnesty International. So you know the answer. Whichever you think is the right one, you have to mark that. Okay, so this is your question 4. Same and same way you have to attempt it. And this is your question 5. Okay, let me explain it to you. Which of the following statements about environment are correct? So your first statement is environmental concerns are part of the global politics. A conference on environment was held in Rio de Janeiro in 1992. The UN has assigned the environmental programs in UN Human Rights Commission. The Earth Summit was organized by the United States Nations. तो आपको ये चार जो statements आपको given है, ये चारों की चारों आपको पढ़नी है अच्छे से. And then you have to tell which of the following given statements are correct about the environment. Okay, so आपको बताना है. So you have to choose the correct option. तो आपको A, B, C, D ये options given है and you have to tell कि you have to mark that option जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये 3 statements जो हैं ये correct हैं बिल्कुल, तो आपको वो mark करना है, ठीक है. एंड मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो भी आपको आपने पढ़ा है या जो भी आपको सही लगता है वो आपने मार्क करना है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the same one. Okay, from the following options you have to choose the set of states that belong to northeast India only. Okay,
Moving on to question number 8, choosing the correct option to complete the sentence. 5-year plans were adopted by the government of India as a policy of a planned development, mixed economy, socialism, industrialization. तो इसमें से जो भी करेक्ट है वो आपको मार्क करना है. Moving on to your question number 9, who gave a call for a nationwide railway strike in 1974? Jayaprakash Narayan, George Fernandez, Ram Manohar Lohia और मोरारजी देसाई. ओके, सो इसमें भी आपने जो पढ़ा है वो आपको मार्क करना है. अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो यू हैव टू अरेंज दी स्टेटमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब इवेंट वाइज, मतलब जो काम सबसे पहले हुआ है सबसे पहले हम उसको रखेंगे, फिर जो काम दूसरा मतलब दूसरे नंबर पे हुआ है हम फिर उसको रखेंगे, फिर हम उसको रखेंगे जो काम उसके बाद हुआ है फिर हम उसको रखेंगे, मतलब इन एन अल्फाबेटिकल मैनर इन सीरियल वाइज मैनर, राइट. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है, मतलब अगर आपका फर्स्ट टू फोर ऐसा ही हुआ है तो आप फर्स्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, राइट. अगर आपका ऐसा नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि फोर्थ वाला इवेंट है जो सबसे पहले हुआ था एंड फर्स्ट वाला इवेंट है जो उसके बाद हुआ था, सेकंड वाला इवेंट फर्स्ट के बाद हुआ था और थर्ड वाला इवेंट सेकंड के बाद हुआ था, तो आप वैसे मार्क करेंगे. ठीक है, तो ये मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब, ठीक है. एंड कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया क्या होता है. ठीक है, सो यू हैव टू मार्क अकॉर्डिंगली. So, moving on to question number 11, this is also a one mark question. Who among the following was the first prime minister to start economic reforms in India? Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh, Inder Kumar Gujral. ठीक है. Now this is your Hindi part. Moving on to your next question, which is your question number 11, assertion reason. So you have to read the statement first, and then you have to read the reason which is given to you, and then you have to mark the correct option. Okay. So moving on to your section B. Okay. So ये section B में आपके 2 marker questions आएंगे. And your 13th question is highlight any 2 important features of the Asian way. तो आपको कोई भी 2 important features इसके मार्क करने हैं एशियन वे के. ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. एज यू कैन सी your 14th question is show with the help of any 2 examples the strength of the United Nations. तो आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो इसके जो भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वो आपने मेंशन करना है. आई सजेस्ट यू टू मेंशन ओनली 2 पॉइंट्स बिकॉज ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप 2 पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करेंगे. ठीक है, बट इफ यू नो मोर देन 2 पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो राइट देम. Okay, so now moving on to your question number 15, explain the terms security. तो ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है. नेक्स्ट भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें आपको 4 रीजनल पार्टीज बतानी है which have ever formed their government in any state. ठीक है, so this is your 2 मार्क का क्वेश्चन होंगे. ठीक है, ये 4 into हाफ डिवाइड किया गया तो ये 2 ही बनेगा. ठीक है, एंड 17th क्वेश्चन है आपका हाईलाइट एनी 2 रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन. इसमें आपको 2 रिकमेंडेशंस हाईलाइट करनी है, मेंशन करनी है, लिखनी है मंडल कमीशन की जो थी. ठीक है, ये की जो है ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपका. ऐसे ही आपका 18th क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. दिस इज ऑल्सो योर 2 मार्क का क्वेश्चन. ये आपका हिंदी में आ गया. नाउ इज योर सेक्शन सी. ओके, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ इट. ओके, सेक्शन सी से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं. ये सारे आपके 4 मार्क का क्वेश्चन है एज यू कैन सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड यू हैव टू स्टेट द 2 फंक्शंस ऑफ इट. आपको डिटेल में लिखना है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है एंड इसके फंक्शंस लिखना है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, एनालाइज एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन योर डेली लाइफ. अब आपको 2 इफेक्ट्स मेंशन करने हैं ग्लोबलाइजेशन के जो आपकी डेली लाइफ में होते हैं. ठीक है, नाउ 21 में क्या है, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. कोई भी 2 मेजर्स बता देना, लिख देना जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए लिए जाते हैं. ठीक है, explain any 4 features of India-Israel relations. Okay, highlight any 4 steps taken by the Indira Gandhi to remove poverty. So ये आपको मेंशन करना है, अच्छे से आपको नीटली लिखना है, अच्छे से प्रॉपर मेंशन करना है. अगर हेडिंग बना रहे हैं तो आप अच्छे से उसको मेंशन करें, हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें प्रॉपर. ठीक है, एंड आई सजेस्ट यू अगर जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर लिखने के बाद आप एक लाइन उसके बाद एक ड्रॉ कर दें ताकि वो नीट एंड क्लीन लगे, लगे कि हाँ आपने सीबीएसई का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है. राइट, आप हाँ मैं ये कहूंगी कि जब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, जब फॉर अ प्रैक्टिस पेपर इफ यू वांट, तो तब आप हाँ रफ में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आपका बोर्ड का पेपर होगा तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे आप अच्छे से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन पेपर को. ओके, कोई भी ऐसा ना हो कि आपने कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी हैं एंड यू आर जस्ट मूविंग अहेड. ओके, सो आप अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन पेपर को एंड देन अटेम्प्ट इट. सो इन क्वेश्चन नंबर 24, ओके, आप यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है. सो ये आपका 4 मार्कर पैसेज है, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. कैसे? नाउ आई एम गोना टेल यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, आपको सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, और उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आपने आंसर देना है. ठीक है, ये भी एमसीक्यू ही है, सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. कौन सी नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा. ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज अफेक्टेड द मोस्ट ड्यू टू साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट.
तो कौन सा इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेट थी जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी, मतलब जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट वाले पार्ट में? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हुई होगी, तो फिर उसमें कौन सी ऐसी स्टेट थी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी? असम थी, नागालैंड थी, अरुणाचल प्रदेश थी, या सिक्किम थी? ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज क्रिएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ इंडो चाइना वॉर? नागालैंड, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको लिखना है जो भी करेक्ट आंसर है। दिस इज योर हिंदी पार्ट। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट लास्ट पार्ट है ये, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये आपका लास्ट पार्ट है। विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट स्प्लिट जस्ट आफ्टर द इंडो चाइना वॉर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस? ठीक है, सो ये आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो आता है आपका, वो मैप है। इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज नंबर 15, 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव बीन मार्क्ड। 4 जो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं वो आपके लिए मार्क की गई हैं एज ABCD, ऐसे मार्क की गई है। आइडेंटिफाई दी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेट्स हैं या कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर। एंड यू हैव टू राइट देयर करेक्ट नेम्स, और उनके करेक्ट नेम्स भी लिखने, सही नाम लिखने इन योर आंसर बुक अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आपको करेक्ट नेम्स लिखने विद द सीरियल करेक्ट सीरियल नंबर। ओके ओके, सो अब हम चलते हैं मैप पे। ये सीरियल नंबर ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूज, ये आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 कंसर्न अल्फाबेट गिवन इन द मैप। तो आपको यहाँ पे वो लिखना है जो क्या कहते हैं अल्फाबेट है, जो जैसे आपको लगता है कि जैसे ये है फर्स्ट है। ठीक है, द स्टेट टू विच द चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन BP मंडल बिलोंग। सो आपको क्या लगता है? अच्छा, अगर मुझे नहीं पता है आंसर, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर बी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अल्फाबेट लिखेंगे, ये बी है, और यहाँ पे ये स्टेट है फर्स्ट, राइट? ओके, सो इसमें जैसे कि आपको लगा जैसे फर्स्ट के आपको दे रखा था स्टेट टू विच द चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन BP बिलोंग्ड, राइट? तो मैप में आपको लाइक बी दे रखा है, बट यू थिंक, ये देखो आपने यहाँ पे कंसर्न अल्फाबेट लिख दिया, यहाँ पे बी, और यहाँ पे आपने नेम ऑफ द स्टेट लिख दिया। यहाँ पे सबसे आपने नेम ऑफ द स्टेट लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने डालना है कि आपको लगता है कि हाँ फर्स्ट वाला जो है, ये वाला जो है, ये है बी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंसर्न बी लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, और यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दिया। अब सेकंड क्या आपको उन्होंने बोला, द स्टेट वेयर बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट। आई डोंट नो द आंसर्स, आई एम सपोजिंग इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपका इसका आंसर है ए। ठीक है, ए लगता है कि हाँ सेकंड का ए है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अल्फाबेट को ए, एंड आप यहाँ पे सबसे पहले सेकंड लिखेंगे, सेकंड सीरियल नंबर। वैसे लिख रखा है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इट्स टोटली फाइन। और यहाँ पे आप स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे स्टेट का नाम आप मेंशन करेंगे, राइट? तो ऐसे आपको थर्ड एंड फोर्थ भी अटेम्प्ट करने हैं। द यूनियन टेरिटरी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2019, द स्टेट फ्रॉम विच द पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़ मुनेत्रा कजाकम originated। तो ये आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है मैप, राइट? सो दिस मैप इज योर 4 मार्क क्वेश्चन, आई थिंक। यस, दिस मैप इज योर 4 मार्क क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको नोट करना है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स। ओके, सो दिस इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, you don't have to attempt this question. Okay, now your next question, which is a 26, you have to study the cartoon given below and answer the questions that follow. सबसे पहले आपको ये कार्टून को स्टडी करना है, and then you have to answer the given questions. So first question क्या है आपका, the tiger sitting on the right hand side represents which organization? जो आपका टाइगर, ये जो टाइगर है ये आपका राइट हैंड साइड पे है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है, एंड यू हैव टू मार्क देम अकॉर्डिंगली। ये आपका हिंदी पार्ट है। लेट्स मूव ऑन टू ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन है, as it is already given. The conflict in Sri Lanka from 1983 onwards was based on which of the following? किस पर बेस था? Discrimination by government between political parties, discrimination by the government between two communities, discrimination by the government between two regions, discrimination by the government between two religions। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको आंसर करेक्ट है आपका, वो मार्क करिए। Now third question is which one of the following statements about Sri Lankan crisis is true? ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज कार्टून कन्वे? ये कार्टून क्या मैसेज कन्वे कर रहा है आपको? ठीक है, श्रीलंकन गवर्नमेंट मैनेज टू बैलेंस द टू राइवल ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ट्रीटेड बोथ द कम्युनिटीज इक्वली, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द टू राइवल ग्रुप्स। तो इसमें से इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज कन्वे कर रहा है एक्चुअली जो कार्टून है, वो आपको मार्क करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट इट। दिस इज योर हिंदी पार्ट, और ये भी आपका विजुअली इंपेयर्ड का है, तो ये आपको नहीं करना है यहाँ तक। ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए क्वेश्चंस हैं, ये आपको नहीं करना है अटेम्प्ट। दिस इज योर सेक्शन ई। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एनालाइज एनी 3 रीजंस रिस्पांसिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इसमें आपको और क्या ऑप्शन है? बी क्या कह रहा है, एनालाइज एनी 2 रीजंस फॉर द बिगिनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग एंड एनी 2 आउटकम्स ऑफ दिस मूवमेंट। आपको कोई 2 रीजंस देने हैं कि बिगिनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग क्यों हुई, एंड एनी 2 आउटकम्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है
एज यू नो दिस इज अ 6 मार्क का क्वेश्चन, तो आपको इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको 3 रीजंस बताने हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो जो सा भी आपको सबसे अच्छा आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू योर ओके, ये जो है यहाँ पर 6 मार्कर बनेगा। ठीक है, ओके 28th क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? ए पार्ट है, हाईलाइट एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कोई भी 3 चैलेंज आपको मेंशन करने हैं, हाईलाइट करने हैं अच्छे से। आपको हेडिंग्स बना रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, एंड मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपका पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा उससे, एंड आपको मार्क्स भी फिर उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। तो आपको अच्छे से लाइंस वगैरह लगानी है। आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ लाइंस, एंड यू हैव टू, अगर आपका कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इन ग्रुप आउट ग्रुप वाला क्वेश्चन था साइकोलॉजी में, राइट? तो आपको उसको लाइन बनानी है प्रॉपर। एक तरफ लिखना है इन ग्रुप, the other side you have to write out group, and then you have to mention all the points very neatly and correctly. You have to underline the important points which you feel like is important and examiner should read, है ना? तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से आपको आंसर को हाईलाइट करना है, आपकी हेडिंग को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, और लाइंस प्रॉपर आपकी बनी होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड में। Highlight the role of Sardar Vallabhbhai Patel to bring the princely states in the Indian Union. Support your answer with the help of any 3 examples. कोई भी 3 examples को आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो डिटेल में मेंशन कीजिएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 29। ए बी में आपको जैसे और के ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे बेस्ट जो आपको अच्छे से आता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आता है मुझे, तो वो आपको करना है। ठीक है, दिस इज योर 6 मार्क का क्वेश्चन अगेन। एंड मूविंग ऑन टू योर 30th क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। So A part क्या, analyze any 3 reasons for the dominance of the Congress party in Indian politics during the initial 20 years after independence, or analyze any 3 reasons for the declaration of emergency in 1975. ठीक है, तो आपको इसमें भी 3 रीजन बताने हैं और इसमें भी 3 रीजन बताने हैं, बट बताने कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका पहला रीजन है कुछ भी है, ठीक है, डोमिनेंस जो भी है, आपका पहला रीजन आपने लिख दिया, वो हेडिंग बन गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये है इमरजेंसी। ठीक है, आपने इसको लिख दिया, फिर आपने इसको अंडरलाइन कर दिया अच्छे से, और इस पूरे को अच्छे से आपने डिटेल में एक एक चीज आपने समझानी है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे, और जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितने अच्छे से आपने चैप्टर को रीड किया होगा उतना अच्छा आप एक्सप्लेन कर भी पाएंगे, राइट? फिर आपकी सेकंड हेडिंग बनेगी और उसको अपने आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर उसके पॉइंट्स है तो आपको अच्छे से पॉइंट्स उसके मेंशन करेंगे, राइट? थर्ड रीजन दिया आपने, उसकी हेडिंग बनाई अच्छी सी, अंडरलाइन करी, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर वो हेडिंग के अकॉर्डिंगली, राइट? और आपको बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। बी पार्ट में क्या है, एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 3 रीजंस आपको मेंशन करने हैं, एंड ये भी आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, and this is all about your political science question paper. And if you have any doubts left in your minds, you please feel free to drop them in the comment section. And if you want answers of this question paper, you can also tell me. You can also leave your comment in the comment section. I will provide you a PDF. Okay, I will pin down the PDF in the comment section if you want it.